ریجنل نیوز یونٹ آکاشوانی سری نگر کی پیشکش شہر شہر منظر۔ آداب، شہر شہر منظر کا تازہ شمارہ لے کر ہم حاضر۔ پروگرام کے آغاز میں آئیے سنتے ہیں عوامی شکایات پر مبنی ہمیں موصول ہوئیں کچھ فون کالز۔ مے ناو عبدالرحمان خان، یہ روز مبارک 50 وری وت مے ریڈیو بوزان دہ رات، مگر زانہ زن میون فون 100 لٹ کور مے وچ مے یہ عرض اچھا کول یہ گام چولس 4,000 مگر ات پلو ونان ات ترو تھی ڈوزر ات کڑو زب شب نیبر تو یہ آب امیک بڑا اصل پہ گئی عمر کھان یہ آب۔ عبدالرحیم وہاں پر پلوام چن آبک کھانا سکیم آب گاڑی پہ رتوان پیوان کر گورمنٹس ون تو دیو کھانا آب سکیم توے پریشان حال یہ جناب چاکر پورہ خاک بڈگام جناب عرض گڈنیت سے بڑ بار ڈیمانڈ سن تمام سیاح جائے یل مگر سون یہ توسہ مٲدان تھوک بند ہیکان اور گپنن نش تہ گھت کہین تیرن نش تہ ہیکان گھت کہین گۄڈٕ دپان گۄڈے نو سا پرمیشن کیا توسہ مٲدانس نزدیک بسان مگر مہربانی تو مہربانی کرت واتنٲتو یہ سن شکایت ڈائریکٹر ٹوریزمس تان کہ توسہ مٲدان تراوہن اس یل اس میلہِ امہ توسہ مٲدانک راحت تو بیٚیہِ چھُم عرض چاکر پورہ ژھل چھ روڈ واریاہ کال گئی سن ڈیمانڈ تتھ عرضی چھُنہٕ وُنہِ دستخط گژھان کہین تتھ گژھِ ٹینڈر نیرن مہربانی کٔرِتھ یہ شکایت واتنٲتو چیف انجینئر RNB یس تان۔ بہٕ سمبل گانستان پہ بشیر احمد بیگ مسلہٕ سون اَسہِ نفر دپان 2 ترٛکھ توٚمُل گورمنٹ اَسہِ کوٚر تتھ کمی تھوٚومُت ترٛکھٕے بیٚیہِ اَسہِ چھُنہٕ عیال بار چلان اتھ پٮ۪ٹھ کِہیٖنۍ سٲنۍ کتھ گژھِ واتٕنۍ DG صٲبس تام گورمنٹس تام تو اَسہِ گژھِ بیٚیہِ تھاوٕنۍ پننہِ پٲٹھۍ 2 ترٛکھ توٚمُل غریب غربات چھنہٕ چلٲنی اتھ۔ بہٕ چھُس ڈرائیور محمد شفیق گنستان پٮ۪ٹھ جناب أسۍ چھِ ییٚمہِ ریڈیو کشمیٖرٕکۍ واریاہ شُکر گُزار حظ ییٚمہِ ریڈیو کشمیٖر والیو جناب یہ پروگرام تھوٚو شہر شہر منظر امہِ کہِ وسعت سۭتۍ چھِ اَسہِ جناب یِم کامہِ گژھان حظ جناب أسۍ چھِ واریاہ شُکر گُزار حظ امیِکۍ۔ کھمبر پہ جناب کھمبر یپر حضرت بل کن محمد مقبول اچھا اور وسان ہیٚرِ حظ نالہٕ وسان اِرگیشن نالہٕ وسان یور خاص جناب تتھ گام والے ؤمٕتۍ حظ منٛز کُلۍ سُہ آب چھِ سیدان اَسہِ دانٮ۪س تِم نالہٕ گٔژھۍ صاف گژھٕنۍ منٛز گٔژھۍ تِم صاف گژھٕنۍ یِہوٚے چھِ اَسہِ رِکویسٹ۔ بہٕ چھُس ملک پور ترگام پٮ۪ٹھ مےٚ روزان کھانڈے چھُ جناب ملک پور نشکانی پٮ۪ٹھ حظ چھِ 4 کلومیٹر جناب سڑک چھِ واریاہ خراب اتھ چھِ دۄب گٔمٕتۍ زبردست جناب یہ سڑک گژھِ گژھٕنۍ ٹھیٖک اپٲرۍ حظ چھِ آب سمیومُت آب بلاے چھِ ساریمٕژ جناب۔ سر گوٗری پورہ پٮ۪ٹھ روزان محمد انس حظ اَسہِ چھُ مسلہٕ پاورُک حظ اَسہِ حظ گٔے 8 دۄہ پاور ژٔٹِتھ حظ مگر بِلا چھےٚ یِوان تیٖژاہ أسۍ کیٛاہ حظ کرو أسۍ حظ چھِ غریٖبٕے ییٚتہِ یورٕ خلق بِل چھےٚ یِوان 1 لچھ 2 لچھ 3 لچھ 3.5 لچھ یورٕ حظ چھِ زیادٕ غریٖب عوام حظ اتھ حظ چھُنہٕ کانٛہہ پرٕژگارا یورٕ ییٚمِس 3.5 لچھ آمٕژ چھِ بِل تٔمِس چھُنہ تیٚلہِ وٕنیُک تام فیٖسٕے زانٛہہ بوٚرمُت؟ ییٚتہِ حظ چھِ اورے سوزان بِل یِتھٕے کٔنۍ حظ۔ نہ اورے کِتھ کٔنۍ سوزان ییٚلہِ تُہۍ فیٖس برونٛہہ باقٲعدگی سان ٲسِو بران 3.5 لچھ ما سمان؟ PDP ڈپارٹمنٹ دفتر حظ یہِ حظ دزاو 2010 منٛز حظ پتہٕ حظ سوزکھ بِلہٕ 2014 پٮ۪ٹھ حظ سوزکھ بِلہٕ یِتھٕے کٔنۍ حظ بنایکھ پتہٕ بِلہٕ اَسہِ حظ گٔے برابر یہِ مسلہٕ آز گٔے 4 ؤری یِہوٚے مسلہٕ کران یِمن اَسہِ دوٚپ یِمن کانٛہہ حلا کٔرِو أسۍ برہو فیٖسا ویٖسا مگر یِم حظ چھِنہٕ غورے کران پاور ژھُنکھ آز گٔے 8 دۄہ ژٔٹِتھ یہِ غریٖب کیٛاہ بنہِ آز چھُ سورُے وٕچھو وٕنکیٚن کوتاہ حالات چھِ خراب کیٛاہ وٕنکیٚن چھِ موٚزوٗرۍ دۄہ چھِ ہٮ۪کان بٔنِتھ وٕنکیٚن یتھ دورس منٛز حظ۔ سامعین، رواں ہفتے کے دوران جموں کشمیر کے بیشتر علاقوں میں موسلا دھار بارشیں ہوئیں۔ موسم میں تبدیلی کے بعد درجہ حرارت میں گراوٹ درج کی گئی۔ اس سے اگرچہ یوٹی کے باشندوں کو گرمی کی شدت سے راحت نصیب ہوئی تاہم بارشوں نے لوگوں کے لیے اور مشکلات پیدا کر دی۔ جموں صوبے کے کچھ اضلاع میں قہر انگیز بارشوں نے قہر بپا کر دیا۔ فلیش فلڈز کے نتیجے میں کئی انسانی جانیں تلف ہوئیں جبکہ لاکھوں روپے مالیت کی املاک پانی کے ریلے میں بہہ گئی۔ اگرچہ سرکار نے متاثرین کی بازآباد کاری اور راحت کاری کے لیے فوری اقدامات کیے اور ان کے حق میں نقد امداد کا بھی اعلان کیا تاہم عام لوگوں کی مانگ ہے کہ مستقبل میں ایسی صورتحال سے بچنے کے لیے بامعنی لاہی عمل ترتیب دیا جانا چاہیے۔ ماضی میں بھی ایسے حالات دیکھنے کو ملے لیکن موجودہ صورتحال کو دیکھ کر یہی محسوس ہوتا ہے کہ متعلقہ محکمے اور ایجنسیاں بیدار نہیں ہوئی ہیں اور نہ ہی عام لوگوں نے کوئی سبق حاصل کیا ہے۔ اس بات سے کوئی انکاری نہیں ہو سکتا کہ قدرتی آفات پر کسی کا کنٹرول نہیں ہے، البتہ اس کے اثرات کو کم کرنے اور امکانی نتائج سے نمٹنے کے لیے پیشگی اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ماہرین کے مشوروں اور سفارشات کو خاطر میں لاتے ہوئے ایک طویل مدتی اور قابل عمل منصوبہ ترتیب دیا جائے۔ ادھر موسمی تبدیلی اور موسلادھار بارشوں کے نتیجے میں وادی خاص کر شہری سری نگر کے لوگوں کی دہلیز پر ایک نئی مصیبت نے دستک دی۔ شہر کے بیشتر علاقوں میں بارش کا پانی جمع ہو گیا، اس قدر کہ سڑکیں تالابوں اور ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگیں۔ کئی علاقوں میں پانی مکان
कारखानों और दुकानों के अंदर चला गया। लोगों ने शहर के ड्रेनेज निजाम के नाकिस और नाकारा होने का इल्जाम लगाते हुए सरकार, खासकर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को इसका जिम्मेदार ठहराया। लोगों ने कहा कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की आड़ में शहर का नक्शा बिगाड़ कर रख दिया गया है और शहर की सड़कें, बाजार, फुटपाथ वगैरह मौसमी तब्दीली के असरात से निपटने के लिए मौजून नहीं है। अगरचे मुतलका हुक्काम ने नशीबी इलाकों से निकासी आप के लिए हंगामी नौयत के इकदाम किए, ताहम आम लोग अब भी यही राय रखते हैं कि हुक्काम इन हालात और अवामी जरूरियात के ताल्लुक से बेहिस दिखाई देते हैं। आम लोगों की शिकायत अपनी जगह और हकीकत भी यही है कि शिकायत बजा है, लेकिन क्या एक आम शहरी इस ताल्लुक से अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहा है, ये भी जवाब तलब सवाल है। इस ताल्लुक से पेश है शहर शहर मंजर की ये तज्जियाती डेस्क रिपोर्ट। मुल्क की दीगर रियासतों की तरह जम्मू कश्मीर भी इन दिनों तरक्की की राह पर गामजन है, लेकिन तरक्की के इन दावों के बीच यहाँ कुछ ऐसे मसाइल भी पैदा हुए जिनकी वजह से लोगों की जिंदगी अजीरन बनती जा रही है। चंद घंटों की बारिश मानो पूरी आबादी के लिए कहर साबित होती है। बारिश होते ही लोगों के जहनों पर सैलाब का खौफ तारी हो जाता है। जम्मू कश्मीर का कोई भी इलाका हो, मामूली बारिश होते ही हर सू तुगयानी की कैफियत पैदा हो जाती है। सबसे पहले तो तमाम छोटे बड़े दरियाओं और नदी नालों में सतह आब में इजाफा हो जाता है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि इन आबी जखायर की पानी समाने की सलाहियत बहुत ही कम हो चुकी है। एक तरफ तरक्की के नाम पर हमने इनका काफिया तंग कर दिया और दूसरी तरफ रोजाना की बुनियादों पर निकलने वाला कूड़ा करकट और मलबा हम इन्हीं आबी जखायर की नजर कर देते हैं। हमने सरकारी या गैर सरकारी तौर पर आबी जखायर में मिट्टी की बराई डालकर इन पर बड़ी बड़ी इमारतें खड़ा कर दी। कल तक जहां हमें धान के खेत और दलदली जमीन नजर आती थी, आज वहां बड़ी बड़ी पोश कॉलोनियां नजर आ रही हैं। माहिरीन माहौलियात और इक्तिसादियात इसे तरक्की नहीं बल्कि कुल माहौलियाती निजाम के लिए तबाही मानते हैं। चंद बरस पहले दिनों और हफ्तों तक बारिशें होने के बावजूद सैलाबी सूरत हाल का वहमो गुमाम भी नहीं रहता था। आज का हाल ये है कि मामूली बारिश से तमाम दरियाओं और नदी नालों में उफान पैदा हो जाता है। ये सारी सूरत हाल पॉलिसी साजों, माहिरीन, इंतजामिया, यहाँ तक कि आम लोगों के लिए एक लम्हे फिक्रिया है। शहरी श्रीनगर की जाज़बियत को बढ़ावा देने, नीज लोगों को बेहतर बल्दियाती सहूलियात दस्तियाब कराने के लिए चंद बरस पहले श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के तहत कई इख्तिराई प्रोजेक्ट हाथ में लिए गए। ज़र कसीर सरफ करके इन प्रोजेक्टों को मुकम्मल भी किया गया। जाज़बियत में इजाफा तो हुआ, लेकिन दीगर बुनियादी सहूलियात से लोग महरूम होते गए। अवामी हल्के मानते हैं कि कई मकामात पर इन कामों की वजह से निकासी आब में रुकावटें पैदा हुई। मामूली बारिशें होते ही शहर की छोटी बड़ी सड़कें झील की शक्ल इख्तियार कर जाती हैं और सड़कें गली कोचे जेर आब आ जाती हैं। गुज़श्ता रोज बारिशों के बाद की सूरत हाल ही देख लीजिए। बेशतर मकामात पर पानी की वजह से सड़कें गायब होकर रह गईं, दुकानों और बस्तियों में पानी घुस गया और आम लोगों के साथ साथ गाड़ियों की आवाजाही में भी रुकावटें पेश आईं। इस सूरत हाल से ये बात वाज़ह हो जाती है कि श्रीनगर का ड्रेनेज निजाम शहर से पानी निकालने के लिए नाकाफी है। इस सारी सूरत हाल का देर पर हल निकालने के लिए मुतल्लिका महकमों को आउट ऑफ बॉक्स सोल्यूशंस निकालने की जरूरत है। शहर में हंगामी बुनियादों पर डिवाटरिंग पंप्स और स्टेशंस कायम करने की जरूरत है। बारिशों को होने से हम कतई तो रोक नहीं सकते, न ही हम इनकी मकदार को कम कर सकते हैं। इंतजामी और अवामी सतह पर इख्तिराई इकदाम करने से हम इस मसले से कामयाबी के साथ निपट सकते हैं। आम लोगों को भी नदी नालों, आबी जखायर और ड्रेनेज निजाम को आलूदगी से पाक रखने में अपना रोल अदा करना चाहिए। ड्रेनेज निजाम की साल में कम से कम 1 या 2 बार सफाई अमल में लाई जानी चाहिए, वरना बारिशें होती रहेंगी और हम सैलाब का रोना रोते रहेंगे और आने वाले वक्त में हमें 2014 जैसी सैलाबों का सामना करने के लिए तैयार रहना होगा। अंदाज बयां गर्च बहुत शौक नहीं है, शायद कि उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। शहर शहर मंजर के लिए मैं सुहेल भट्ट। मौसमी सूरत हाल का चारा करने के लिए सूबाई इंतजामिया की तैयारियों के बारे में डिविजनल कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने शहर शहर मंजर को बताया। देखिए कि जैसा हम देख रहे हैं कि पिछले 3 दिन से वेदर एडवाइजरी IMD की तरफ से निकलती है और फोर वार्निंग रहती है कि किस तरीके के मौसम के रहने की उम्मीद है, और उसी वेदर एडवाइजरी के बेसिस के ऊपर हमारी जो तैयारियां भी रहती हैं, एक्सटेंसिव प्रिपरेशंस, और ऑनरेबल CM साहब की चेयरमैनशिप में काफ़ी रिव्यू मीटिंग्स भी इस मुद्दे पर हुई हैं। विभिन्न डिपार्टमेंट्स ने भी अपनी अपनी तैयारियाँ इस एडवाइजरी को लेकर के करी हैं, चाहे वो इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट की बात हो, क्योंकि लास्ट ईयर भी हमने देखा कि फ्लड्स का एक सिलसिला हमें काफ़ी परेशान कश्मीर वैली को होना पड़ा था। उसी पैटर्न के ऊपर इस साल भी जो है तैयारियां उसी स्तर पर की जाती हैं। कंट्रोल रूम्स एक्टिव हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशंस ने भी अपनी टीम्स को एक्टिव किया है, डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम्स एक्टिव किए गए हैं, लोगों तक हेल्पलाइन नंबर्स पहुंचाए जा रहे हैं,
वेदर एडवाइजरीज भी सर्कुलेट की जा रही हैं। साउथ कश्मीर के लिए खास एक वेदर एडवाइजरी जारी की गई है, जिसके लिए लोगों को भी इतला किया गया है कि वो जो ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम की और उसके आसपास नालों से थोड़ा सा दूर रहें, उसमें वेंचर आउट ना करें। इसके अलावा जो एसेंशियल डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे पावर है, हमारे वाटर सप्लाई है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, उन सभी की टीम्स भी हाई अलर्ट मोड पर हैं। ओवरऑल कोशिश यही है कि जिस तरीके से इवॉल्विंग वेदर सिनेरियो है उसके हिसाब से भी अब रिस्पॉन्ड करें, और जो कंट्रोल रूम्स हैं वो भी कंटिन्यूसली सिचुएशन को मॉनिटर कर रहे हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो ये वेट वेदर स्पेल है उसको हम बेहतर तरीके से नेगोशिएट। सामीन, प्रोग्राम के इस मरहले पर आइए सुनते हैं अवामी शिकायत और मुतालबात पर मबनी कुछ मजीद फोन कॉल्स। वसन करने पे गुलाम अहमद गौसर अर्ज करान सठा शुक्र गुजार रेडियो कश्मीर वालन हूँ सान मुतालबह वातान छत वो बोड़ बार मसला वसन यह तकरीबन 2 महलन पे वनकस वो करे लटि गवर्नमेंटस गुजर बराई मेहरबानी वसन सो ये बनावी मतलब ये बन 2 हल्क हुरान वार्ड वनकस अगर रपस 20,000-30,000 वातान वसन वातान कुन महलस वन कतो 2 हल्क हुरान वार्ड सहूलियत वात मुश्किलात चलान बे बोड़ बार अर्ज ग्राउंड बनोमुत ये वसन एस मजे तथ योतान पंचायत राज तोताम पंचायत वल तम गसान पंचायत राज मकल पे पुरुष तथ वनकस थोमुत दरबदर वो बच्चे वालीबाल गिंदान क्रिकेट गिंदान इन बिचारन कुन दिवान गिंदन तम खुद करे गुजारिश DC साहबस अम महकम चन शेर तो सान बच्चन वात सहूलियत वात कम फायद बराई मेहरबानी करो सठा शुक्र गुजार रेडियो कश्मीर क्या विज कोर फोन वात अफसर तमो वुच क्या मुश्किलात क्या हाल बजर रेडियो जरिए वात मसल तमन तम वो सान मुतालबह गस वात जान वसन नजर सानी करान सुंबल इंदरकोट पे गुलाम हुसैन बाठस गवर्नमेंट लैंड जमीन 50-60 कनाल मिडलस तम स्कूल बन बे पावर स्टेशन बन लगे गाँव वाले जी फ्रस अन गोर तुम फ्रस सो पदम लटि आज स्पेशल सुंबल गुजारिश कर यह साफ कर यह कर आज वरी साफ अत लग लूको बे बचन फेरनस थोनस मुकाम यह साफ कर बच्चे वच्चे गिंदान अपर मोहम्मद इस्माइल बट कुपवाड़ा चौकी बाल जोना रेशी सर ये गम वही माल लोन मालस मज गम कल ये शुरुआत गसान तथ पहाड़ अत बत तथ आय नम लाग कम लजिक यमो रूरल डिपार्टमेंट वालो तथ जाए ये लागन कह तथ शुरुआत मज लाग कम तथ कह पाइप ट्रकन की जरूरत तथ गन तम लागन ताकि आबस वाते गमस मज जमीन सगरावन खतर मगर तथस मुश्किलात जबरदस्त ये चन खतर आब जमीन खतर आब कह मुश्किल DC सोबस तान कासस वाते ताकि तुम ध्यान योकुन ध्यान बहुत रफियाबाद अचबल पे मोहम्मद यूसुफ अर्ज करान ये मसल ग्राउंड स्कूल ग्राउंड लोकल लड़कन ग्राउंड यह बनोमुत यह तकरीबन 30-40 कनाल पट मुश्तमिल अत ब्रो ईर वीर तमो ईर वीर गर खत्म तो बनो ग्राउंड अत मज ग्राउंड अलाव नमाज पान अगर अत कोरक यमो ठेकेदार लोकल ठेकेदार अना मेज ट्रैक्टर त्रावान मागम द्रगर पे अब्दुल मजीद आब न कहें तमो लन वन थोमुत टित नलका तुलम सारी बहर वाद बेमामत अंद पे गर वल बसने तम तुलान सर अस आब खानापुर खान साहब बड़गान पे जोर अहमद शाह अर्ज स्कूल बन ये गाम नबर कुन तथ सड़क तक बचन गसान तूत अजाब पकन ये रूद रब मज बे अर्ज ब्या दरिया गुजरान अत करे लटि हुकूमत गुजारिश एग्जाम सोबस गई बह 2-3 लटि दरखास्त तमिस BDO सोबस नश तो बंदबंदी करान कह जायन वन नुकसान वातन खतर जनाब यजबेर लरबल पे फेरोज अहमद शेख जनाब मसल इत पे पे वसत कर हीर तान वह दोन साइड जमींदारों पोस नमीन दोनों साइड सड़क बढ़े PMG तहत वो कर फीलिंग सौर साइड योर साइड वनकन सेमन सड़क वीर पे यजबेर पे जरपैर पे बराबर वीर तान सेमन सड़क आब जमा अत पकड़ वत कहें गाड़ी अगर दोम गाड़ी सह पास कहें जबरदस्त प्रॉब्लम सख्त इंतहाई बार बार पे हकमन MLA गया D साहब गया मगर अक्सर कौन सियाहत को जम्मू कश्मीर के इक्तिसादी मंजरनामे में इंतहाई अहमियत हासिल है। वादी कश्मीर को इस सिलसिले में और भी अहमियत मिलती है क्योंकि इस खत्ते को कुदरत ने सियाहत के लिहाज से बेहद खूबसूरत और हसीन तहाइफ से मालामाल किया है।
सोनमर्ग यहाँ की चोटी के सियाहती मकामात में एक है। सरकार ने तकरीबन सभी सियाहती मकामात के रखरखाव और इन्हें मजीद फरोग देने की खातिर डेवलपमेंट अथॉरिटीज तश्कील दी हैं। अलबत्ता सोनमर्ग के लोगों ने सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी पर इलाके की सफाई सुथराई पर ध्यान न देने का इल्जाम लगाया है। एक रिपोर्ट के साथ गांदरबल से हमारे नुमाइंदे साबिर अय्यूब। कश्मीर की खूबसूरत वादियों में वाक़ा सोनमर्ग अपनी कुदरती दिलकश सरसब्ज़ जंगलात, वसी व अरीज सब्ज़ारों, शफाफ ग्लेशियर्स और बर्फ से ढकी बुलंद चोटियों की बदौलत दुनिया भर के सयाहों के लिए एक मुनफरद दिलकश मुकाम रखता है। सतह समंदर से तकरीबन 8,960 फुट की बुलंदी पर वाक़ा ये दिलकश सयाहती मुकाम लद्दाख का गेट वे भी कहलाता है और हर साल लाखों मुल्की व गैर मुल्की सयाह यहाँ का रुख करते हैं। माजी में शदीद बर्फबारी के बायस मौसम सरमा के दौरान सोनमर्ग तक रसाई महदूद हो जाती थी, ताहम सोनमर्ग टनल के तामीर के बाद इस तारीखी सयाहती मुकाम के लिए साल भर आमदरफ की राह हमवार हो गई है। मुकामी बाशिंदों, होटल मालिकान और सयाहत से वाबस्ता अफराद का कहना है कि इस पेशरफ से न सिर्फ सयाहती सरगर्मियों में नुमाया इजाफा होगा बल्कि रोजगार, तुजारत और मुकामी माशियत को भी नई रफ्तार मिलेगी। सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से इलाके की खूबसूरती बरकरार रखने, बुनियादी ढांचे के बेहतर बनाने और सयाहों को सहूलियात फराहम करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए जा रहे हैं। सफाई, पार्किंग, ट्रैफिक निज़ाम, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ और सयाहती मुकाम की देखभाल के शोबों में पेशरफ्त को सराहा जा रहा है। इस सिलसिले में जब हमने चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी बिलाल मुख्तार से बात की तो उनका कहना था, मैं आपको ये बताता चलूं कि जब से हमारा ये जो सोनमर्ग टनल थ्रू हुआ है तो तब से हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी सिर्फ समर डेस्टिनेशन है ये अब 12 मंथ्स के लिए। इस साल भी आपने देखा होगा, आपने सुना होगा कि किस तरह से विंटर गेम्स का वहाँ पे हमने किया। उसके साथ साथ अगर हम इस साल की बात करें, इस साल में आज तक तकरीबन 4.25 लाख तक सयाह जो है मुकामी या गैर मुकामी, नेशनल इंटरनेशनल जो हमारे टूरिस्ट है वो आ चुके हैं। तो जैसे आपने फरमाया कि क्या हमने किया है, मैं टूरिस्ट को फैसिलिटेट करना, टूरिस्ट को सेटिस्फाई करना, ये हर एक स्टेक होल्डर की जिम्मेदारी है। इसमें न कि सिर्फ सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी बल्कि बाकी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितने स्टेक होल्डर्स हैं, चाहे वो पूनी वाले हैं या ट्रेडर्स या होटलर्स हैं। और मैं खुदा के फजल से काफ़ी मुतमईन हूँ कि जब भी मैं फीडबैक लेता हूँ वहाँ टूरिस्ट से तो काफ़ी सेटिस्फैक्टरी फीडबैक देखने को मिलता है। जहाँ तक बात रही कि इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके, दो चीज़ें हैं, टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। टेंजिबल में जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें हम देखते हैं कि चिल्ड्रन पार्क जो हमारी है अभी तैयार है, उसमें बस सिर्फ इक्विपमेंट्स जो है वहाँ पे लगाने बाकी है। बाकी सी थ्रू फेंसिंग पे काम चल रहा है जो हमारा मेन सोनमर्ग बाउल को कैटर करेगा। और उसके बगैर काफी जो वफद आए थे हमारे पास की जो डस्टबिन को लेके, तो पिछले हफ्ते 10-15 दिन पहले हमने मार्केट्स में इंस्टॉल करवाए हैं और बाउल में भी मेन जगह पे जो है उनको इंस्टॉल किया गया है। कुल मिला के बात यह है कि वी आर सेटिस्फाइड विद द इन्फ्लक्स ऑफ टूरिस्ट। सोनमर्ग और तरक्की करें। ताहम मुकामी लोगों और सयाहों का मानना है कि सोनमर्ग में बढ़ते हुए सयाहती दबाव के पेश नज़र मजीद इक़दाम की ज़रूरत है। जदीद पार्किंग, अवामी बैतुल खुला, पैदल चलने वालों के लिए महफूज रास्ते, बेहतर तबी सहूलियात, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, मालूमाती मराकज़, माहौल दोस्त ट्रांसपोर्ट और हंगामी इमदादी निज़ाम को मजीद मजबूत बनाने पर जोर दिया जा रहा है। सयाहत से वाबस्ता माहिरीन का कहना है कि अगर कुदरती हुस्न के तहफ़्फ़ुज़ को अवलीन तरजीह देते हुए जदीद सहूलियात फराहम की जाए तो सोनमर्ग न सिर्फ कश्मीर बल्कि पूरे जनूबी एशिया के नुमायां तरीन चारों मौसमों की सयाहती मराकज़ में शुमार हो सकता है। इनके मुताबिक पायदार तरक्की, माहौल दोस्त मनसूबाबंदी और मुकामी आबादी की शमूलियत ही सोनमर्ग के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की ज़मानत बन सकती है। सोनमर्ग से शहर मंजर के लिए मैं साबिर अय्यूब। कुलगाम कस्बे में वाक़ा तहसील पार्क में भी वहां के बाशिंदों ने बुनियादी सहूलियात के फुकदान की शिकायत की है। हमारे नुमाइंदे खुर्शीद पडरू की ये रिपोर्ट। कुलगाम कस्बे में कायम तहसील पार्क में बुनियादी सहूलियात न होने की वजह से यहाँ पर सैर तफरी पर आने वाले लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सुबह और शाम के सैर से लुत्फ अंदोज होने के लिए पार्क में आने वाले मुकामी लोगों ने जरूरी सहूलियात की अदम दस्तयाबी पर तशवीश का इजहार किया है।
मुकामी लोगों का कहना है कि मुकामी और दीगर इलाकों से आने वाले सयाहों को भी सख्त मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, क्योंकि पार्क में ना ही पीने के लिए साफ पानी और ना ही पार्क में बैतुल खला न होने की वजह से बुजुर्ग शहरियों, खवातीन और बच्चों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, जबकि दिन के वक्त पार्क में आने वाले सयाहों को भी इन बुनियादी सहूलियात के फुकदान की वजह से इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ता है। शाम के वक्त रोशनी की अदम मौजूदगी की वजह से सैर करना मुश्किल बन गया है और सुबह सवेरे और गुरूब आफ्ताब के बाद हिफाजती खदशात भी पैदा करती है। मुकामी लोगों ने ज़िला इंतज़ामिया और मुतल्लिका हुक्काम से अपील की है कि पार्क में बैतुल खला, पीने के लिए साफ पानी की फराहमी और मुनासिब रोशनी का इंतज़ाम किया जाए, ताकि मुकामी और आने वाले सयाहों के लिए एक महफूज और आरामदेह तफरी मुकाम के तौर पर काम कर सके। यहाँ पार्क में आए थे हम, पहली बार आया हूँ मैं सर। यहाँ इस पार्क में जो प्रॉब्लम है वो मेन प्रॉब्लम पानी की है। पानी की वजह से यहाँ घास भी मुरझा रहा है और फूल भी। और सर यहाँ लाइटिंग का सिस्टम नहीं है, बाथरूम की बहुत जरूरत है, बाथरूम नहीं है इस पार्क में। और मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि यहाँ लाइटिंग लगाई जाए और पानी की कोई सुविधा दी जाए, जिससे ये फूल घास वगैरह मुरझाए ना। पार्क बहुत अच्छी बनाई है, बहुत बड़ा रकबा है इसका और डिजाइनिंग बहुत अच्छी है, पेड़ पौधे भी बहुत अच्छे लगे हैं, लेकिन पानी की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम है। मेरा नाम आबिद हुसैन वानी है और मैं ऋषिपुरा कुलगाम का रहने वाला हूँ। ये जो पार्क है कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं विजिट करने के लिए। हमारी तरफ से डीसी साहब से मुआदमाना गुजारिश रहेगी कि यहाँ पे जो है फुटपाथ है, वॉशरूम है और जो हट्स बनाई है यहाँ पे, लाइट्स, वो सारा कुछ रिनोवेट होना चाहिए। यहाँ पे जो भी आते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, इसलिए ये मुआदमाना गुजारिश है डीसी साहब से कि वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों को रिनोवेट कर दे। खासकर जो फुटपाथ, लाइट्स और स्विमिंग पूल है यहाँ पे और जो हट्स है, इनको रिनोवेट कर दे और वॉशरूम का भी कुछ इंतजाम हो जाए। शहर मंजर के लिए कुलगाम से खुर्शीद पडरू। सामीन, वादी के लोगों ने बाजारों में दस्तयाब अशाई खुरनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे की भी शिकायत की है। बेशतर अजला से हमारे नुमाइंदों ने इत्तला दी है कि वादी में मुर्ग की कीमत 200 रुपये फी किलो हो गई है, जबकि एक अंडा 10 रुपये का फरोख्त किया जा रहा है। लोगों ने मुत्तलका हुक्काम से इस जानिब तवज्जो देने की मांग की है। सामीन, सरकार का दावा है कि लोगों की राहत रसानी और तर्ज जिंदगी में आसानी पैदा करने के लिए तरक्याती अमल को दवाम बख्शने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। हकीकत भी यही है कि लोगों की बुनियादी जरूरियात पूरा करने के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं। अलबत्ता लोगों की शिकायत है कि मजमूई तौर कई तरह की बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। शहर मंजर को श्रीनगर के कई इलाकों से शिकायत मिली है कि बिजली की अनशेड्यूल्ड कटौती को मामूल का अमल बनाया गया है। शिकायत कुनंदगान का कहना है कि इस मसले में मीटर्ड और अनमीटर्ड इलाकों का हाल तकरीबन यकसा है। यहाँ तक कि उन इलाकों में भी बगैर शेड्यूल बिजली सप्लाई बंद की जाती है जहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर्स नस्ब किए गए हैं। लोगों का कहना है कि पेशगी इत्तला के बगैर बिजली कटौती से उन्हें सख्त मुश्किलात से दो चार होना पड़ता है, खासकर ऐसे मरीजों को जिनके इलाज में बिजली की जरूरत पड़ती है, मसलन जिन्हें तिब्बी ऑक्सीजन दिया जाता है। ऐसे अफराद भी परेशानी का शिकार हो जाते हैं जो अपनी नौकरियों के सिलसिले में ऑनलाइन सरगर्मियां अंजाम देते हैं। लोगों का कहना है कि बिजली एक आम इंसान की बुनियादी जरूरत है और बिजली की मौजूदा सप्लाई सूरत हाल में बेहतरी लाने के लिए नतीजा खेज इकदाम किए जाने चाहिए। सामीन, बिजली की सूरत हाल के ताल्लुक से अवामी शिकायत बजा है, लेकिन बिजली के मुनसिफाना इस्तेमाल में एक आम सारिफ का ही रोल बनता है। आम लोग अपनी जिम्मेदारियां निभाएं और सरकार अपना फर्ज अदा करे तो सूरत हाल को यकीनी तौर बेहतर बनाया जा सकता है। प्रोग्राम के आखिर में आइए सुनते हैं कुछ मजीद फोन कॉल्स। अब्दुल्लाह खांडे शालबुग गांधरबल पे आज ब्रो 2 वरी दरियाव सिंध क्या वसा पे नाव शालबुगस अतोस अंदी दिन लेन गवर्नमेंटन कनी क्रिएट और पका तम पे असल पटे बेसिम शिकायत वकायत आसिम नाव आवाज सिम गंडा उठिस पता 2014 में सहला सुगा वुड थी अंध हती कुछ करा गवर्नमेंट अपील तुंद वसा पे मूजिब आज गोस बेस लेन गसिम कनी क्रिएट इस गंडा शिकायत वकायत असल पट इस कोरा दुआ तो दुआ खर तो ते मन साहब जनाब बस मधुबन हजन बांडी पूरा पे मान मकबूल डार जनाब ये स्कीम PMAYs अमे स्कीम तहत तमन लुकन की फोर्स त्रान मकान खतरे वे सिलसिलस मज हजन ब्लॉकन बनोमुत सोरी
इलीगल तो गलत बनोमुत तमन नाव थमित ऑलरेडी मकान बनत ब्रो तो तम नाव त्रेमित अत वाते सह असल पे कवाटस मज बसान वर तम कर्मित लिस्टस मज शामिल हम असल हकदार त्रेमित अत नंबर बे ब्लॉक हम कर गलत कामे खलकन तुलान वत पे फोटो तो पे हावान तम काम करान मगर काम कुछ जाए कर्म फोटो तुलान हावान पे ब्लॉकस मज मुलाजिम लकुट मुलाजिम तोर हाजिरी तोर कड़ान पोस यह समझ गसान क्या हमेशा नयद गाम पे जिला बडगाम सोन मसला आबुक मस ये गो 2 वरी पाइप लाइन तयमित मगर यम आब त्रावान कहें बिल्कुल आब त्रावान अत कहें ये गरीब अवाम सफर करान कूत वरी वोत बोदान हर घर नल से पानी मगर ये गोमुत हर घर नहीं पानी मेहरबानी कर वादन तो यह सोन मसलो उमर अब्दुल्ला तम ताकि ये गरीब अवामस वाते फायदे बहुत कागदार पे निसार अहमद गोडे कर मुबारक सेहत बदल थो पावरस गो गंट फर्क पावरस शिकायत करे मे तथ आई फर्क बे तमलुक अत हेतुक ओड किलो खोन अगन यमन ज्यादा तिमन किलो खान कम तिमन ओड किलो खान यह क्या कसा यह वन यह स्टोर वाले कह नफरा खालन ओतन यह क्या दलील ईद गया यम पथ तेल बेहतर चंद कर स्टोर वाले जनाब सराय डांगरपुरा पे बांडी पोरा से जनाब शमी मोहम्मद भट जनाब अस पकान योर सड़क वाज महला पे पकान यह गाँव मज जनाब मगर अस त्रोक मैगडम कहें जनाब बाकियन त्रोक सरसी मगर अत पेवान कह रूद पे दोह पे रूद बस अत ग पे रपि से कुन मगर अत वोन लट अत त्रो मैगडम मगर त्रावान जनाब कहें अस कर वाहन वोन अम ब्रो तोर दोक अत त्रो मैगडम त्रो मगर त्रावान जनाब कहें माज बेन पकान अप दब लगान रब मामूली पे रुद लव पे दब लगान बस पे हेकान माज बेन मतलब लगित हेकान मगर सोन मुल्तारा बूज कसे बूज सोन लट करे अर्ज अस कटो मैगडम तो जनाब हुजूर वकील डिस्ट्रिक्ट गांधरबल पे जनाब राजनाथ रैना हुजूर अस कर लट अप्रोच वनकन ज़ईफ़ुल उम्र मज यह रिटायर शुर कम करान करे तुंद जरिए 2 लट मगर तथ अर्जी वन कहें वन ताहाल वो इन गांधरबल कन तन नफर करान रिप्रेजेंटेशन एजुकेशन मज त्रे घर अफसर कन्फर्मेशन बगैर पत्थर वो विजिलेंस क्लियरेंस तनिमुत पर्व दुत त्रिस 10,000 नफरन दिख मगर तम सात कोरुक टिकट चूज कर फरामोश वो कर सैनिस हालस नजर सानी गई बुजरस मज लगान पोस वाले बकार दवा पे लगान हाकमन से गुजारिश सैनिस ये क्वेश्चन सकीना जी सो गोस नजर सानी कर आर्डर दिन आवर शुपियान पे गुलाम मोहिद्दीन ये इरिगेशन मसला अतन लिफ्ट इरिगेशन तन तमो ये आब बसान होज बनोमुत तमो पे तन लकट लकट बच्चे तम स्नान कर मया बच्चा तक बड़ तम आबस बढ़ना यह असिस्टेंट दप अमिस तुम दित पे इंगलरन दिस तो पे दिस क्रिएट यह कर बंद तो मगर तमो मोन ना कह तम दपन पोस अगर वो तुहद थ्रू क्या सदभाव तन मेव बाकी तमो कोर नुकसान तह सामीन, अगर आप भी अपने मसाइल या मुतालबात इस प्रोग्राम के जरिए अरबाब इख्तिदार तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हर सोमवार या मंगलवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक हमारे टेलीफोन नंबर 0194-245-2019 पर राबिता कर सकते हैं। प्रोग्राम के आज के शुमारे का वक्त इख्तिताम को पहुंचता है। निगरानी आला अशफाक अहमद शाह, तरतीब कौशिकी कश्यप, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग मीर अब्दुल हमीद, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर। अपने मेजबान सैयद मुबशिर रफाई और प्रोग्राम की पूरी टीम को दें इजाजत। खुदा हाफिज।